कॉन्टेक्ट मिल रहा है कि नहीं? तैयार रहिए, हमारे गेस्ट आ चुके हैं। अभी किसी क्षणों में प्रोग्राम आरंभित किया जाएगा। Honorable Chief Guest Sri Tesam Pongte, Honorable Speaker of our State, Special Guest Sri Wangki Lowang, Honorable Minister Environment and Forest, Geology, Mining and Geotechnical Government of Arunachal Pradesh, Sri Wanglam Savin, Honorable MLA 55 East Assembly Constituency, Respected Deputy Commissioner Tirap, Sri Techoaran, SP Tirap, Honorable ZPC Tirap Chatong Lowang, Honorable ZPNs of Tirap, ADC Tirap, CO44 Assam Rifle, Administrative Officers of Tirap District, Chief of Khela, Chief of Kheti, Head of the departments from various departments of Tirap, all the Chief GBs, PRA members from different villages of Tirap, senior citizens, public leaders of different rank and file, students community, media friends, dance troupe, ladies and gentlemen present here today. On behalf of the Ronghorn Festival Committee, it is both my honor and privilege to welcome you all to the second edition of the Ronghorn Festival of the Ronghornja in particular and district in general. We are truly blessed to have in our midst our Chief Guest Sri Tesam Pongte, the Honorable Speaker of Arunachal. Sir, your gracious presence here today brings a great pride and encouragement to our humble community. Despite your many responsibilities and duties, you have chosen to be with us, and for that we are deeply grateful. Your leadership, your wisdom, and your commitment to the welfare of our people have inspired many, and today your presence not only dignifies this festival but also motivates us to work with the same dedication and sincerity for the betterment of our people.
We are equally honored to welcome our special guest, Sri Wangki Loang, Honorable Minister, Environment and Forest, Geology, Mining and Geotechnical, Government of Arunachal Pradesh, Sri Wanglam Savin, Honorable MLA 55 East Assembly Constituency, whose support and encouragement and aid work and strength to this celebration. Along with them, I warmly welcome our respected Deputy Commissioner Tirap, Honorable ZPC Tirap, Honorable ZPN Tirap, officers, community leaders, our dear fellow villagers and our friends who have traveled far from different districts of state to join us today. Truly your presence here is a blessing that enrich this festival. At the same time, I also welcome Madam Speaker and their team who is coming from long way from Changlang district to witness this festival. This festival, which we began only last year, was born out of a humble dream, a dream to bring together the people of Ronghonja, of our Tirap district, in the spirit of unity, brotherhood, and cultural pride. It is not only a celebration of our tradition and values, but also a reminder that when we gather as one family, we grow stronger together. With God's grace, we hope that this Ronghon festival will continue for many years to come, passing from one generation to the next, always reminding us of who we are and what binds us as people. To every single one of your presence here today, I extend my most heartfelt welcome. May this festival be a day of joy, of laughter, of friendship, of memories that we will carry with us long after the celebration ends. It is my humble hope that all who have gathered here will not only enjoy the festival, but will also feel a renewed sense of togetherness and pride in being a part of the Ronghon community. Before I conclude, I would also like to express my gratitude to the organizing team, our volunteers, and everyone who has worked tirelessly. Thank you. Sir, Yame. Sir. ADC Thonsa, Drone ready कर ADC Konza, जो था मेन जैसा करता भाविक में, प्लीज जोरदार तालियां हमारे स्पीकर मैडम की। जोरदार तालियां हमारे सर के लिए, सीओ सर के लिए।
a celebration of a bountiful millet and the elders of the Nokte and Tuksa communities. of the Northeast India Rongwan Festival of Nokte and Tuksa. In gratitude to our ancestors and the nature for the bountiful harvest. Sri Kega Lamthakji, please. Bulan có chuyện quoi? Có nó mua cổ rồi. Hello long atoi, hello. Eh, kuak mana nak kuak konten mana? Anak kuak ah eh. Kuak. No, dia kuak. Kuak lagi. Eh, kuak mana nak kuak konten mana? Anak kuak ah eh. Kuak. No, dia kuak. Kuak lagi. Tertib apa? Tertib apa? Bukan makan. Bukan makan ni.
It was at Cherju, Kerala, due to unavoidable condition on this ground. So actually, in Tirap district, we celebrate, every village celebrate their own festival, and it is being called by different names at different times. For example, to start from Myanmar border, Maju area side will celebrate Morang festival. Then coming down little bit, again there is another major festival is Pongtu, and on another bank of Dadam area is Maju festival, and little bit moving down again Ronghon festival, and another very soon coming is the Chalo Loku festival. So we have got 5 major festivals which is being celebrated by every villages, and all the villages basically are crop oriented. Either it is millet crop or it is a rice. Therefore, this festival is a millet festival in one way. It is celebrated in summer by many villages across the tribe of Noktes and Tutsas. And we are very happy, in fact, to have in our midst Honorable Speaker Sri Tesam Pongteji for coming and attending this joyous moment to share the happiness of celebrating Ronghon festival with us,
any festival, every festival is a occasion of happiness, sharing of love, and recalling our ancestors, the traditions, praying for more development, more prosperity. That is the basic philosophy of any festival. Therefore, this Ronghon festival is no exception. And I hope there is our next generation will carry forward with strong commitment to continue our traditional festival and cultures in times to come. I had some thought in my mind that if the youth of Tirap district can just discuss on any platform, maybe if you can sit together and work out to celebrate, to fix one particular time for celebrating all the 5 festivals in a single go. We can work out a time and let us name that one as a Tirap festival. I think that if we celebrate, if we keep up the festival for 5 days, maybe for a week, and every festival will be represented on those days, it will be a very good tourist attraction festival. You can have better, more time, more interaction, and from out for visitors also, it will be a very nice or leisure. It will have more time for tourists to witness those cultural displays. इसलिए मेरा ऐसा फीलिंग है कि ये जो चालो लोकू, पोंगटू, ख्वाजू, गोरा, रोंगहोन, ये लोग को तिरप फेस्टिवल बोल के एक टाइम में हम लोग करने से अच्छा है, लगने से एक सप्ताह ही क्यों ना हो। तो इस पे जो है इतना बुद्धिजीवी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का, जितना भी युवा लोग थोड़ा इसका ऊपर में गौर करें और चर्चा करें। और आप लोग का अगर ऐसा इसमें अगर कंसर्न है तो आई थिंक हम लोग एक बार बैठ सकता है सब मिलके खुनसा में, एंड वी कैन वर्क आउट हाउ टू गो अबाउट। तो दैट विल बी अ वेरी रिमार्केबल, बिकॉज गांव में तो अपना फेस्टिवल होता ही है, उसको तो नहीं भूलना है, क्योंकि विलेज इज द रूट ऑफ एवरी कल्चर। जैसे एक पेड़, एक पौधा, उसका जो रूट है वो अगर रूट नहीं होता है तो ऊपर में फल फलेगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं। ऐसा ही गांव हमारा अपना रूट है, गांव में अपना कल्चर को कोई नहीं भूलना चाहिए, अपना ट्रेडिशन को अच्छा से प्रिजर्व करके रखना चाहिए। उसमें ही हम लोग का पहचान है, हम लोग का अपना आइडेंटिटी है। इसलिए जो गांव में फेस्टिवल्स होता है उसको भी हम लोग और भी मजबूती से इसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एज ए होल मिलके हम लोग तिरप फेस्टिवल का नाम से सब फेस्टिवल को एक बैनर का अंदर में लिया के सब लोग मिलके कर सकने से तो ये बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया होगा, ऐसा मेरा सोच है। इनफैक्ट ये मेरा सिर्फ इट इज माय इमेजिनेशन, मेरा एक सोच है। तो इस पे आप लोग का विचार मैं इनवाइट करूंगा, और जितना भी यहाँ में कल्चरल ग्रुप दूसरा गांव से आए हैं, वो पार्टिसिपेंट्स आए हैं और ये फेस्टिवल को देखने आए हैं, आप सबको मैं हैप्पी रोंघोन बधाई।
You look, you take care of it. You take care of it. I'll go and have some rest. If possible, थोड़ा सा यार हम खड़ा नहीं हो पा रहा है यार मेरा पूरा ये हम मेरा फोन में रखा है क्यों ना अंकल भैया यार वहाँ में है म्यूजिक क्या मैंने दे देगा इसको तो के लिए भी बहुत हमारे रिचुअल में यूज किया जाता है। बहुत सारे रिचुअल में जो है ये पट्टा को रीड करके स्टार्ट किया जाता है। तो आप देख और ये पट्टा देखने वाले स्पेशलिस्ट देखने सकते हैं। लोग ड्रम बजाते हुए ग्रुप मार्च रहे हैं। जो अभी बीच में बैठे जो कुछ लोग जो जीत हासिल करके बैठे हुए हैं वो लोग को अभी करने के लिए जो है चारों तरफ घेर लिया गया है। जगह से दूसरी जगह कैप्चर करने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को लूटने के लिए कुछ इस तरह अटैक किया जाता था। अपने गांव के क्षेत्र को बनाने के लिए कुछ इस तरह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर अटैक किया जाता था। जीत हासिल कर चुके हैं। म्यूजिक में चिपका उनको मार दिया गया है और ये पहाड़ को भी फिर कैप्चर कर चुका है। म्यूजिक कौन को मारना कौन बोल मारो तो अभी यहाँ युद्ध का जीतने का जश्न मनाया जा रहा है। गाने का शीर्षक है औखन नाम इसका मतलब है और कुछ इस तरह गाने हम लोग का दाव जो जंगी स्वर है उसका
दाल से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ इस तरह गा रहे हैं, मुर्गी का शिकार करता था, उसी तरह हम लोगों ने भी शिकार करके दुश्मनों को गिरा दिया। हमारे पास इतने तेज है, हम लोग हासिल करके रहेंगे। और कुछ तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दुश्मनों की सरकार काट के अपना गांव की ओर ले जा रहे हैं, जिसे एक बड़ा सा पेड़ का ऊपर लटकाते थे और जब वो सड़ जाते थे उसको मोरू और पांग ये संभाल के रखे हुए हैं। Xuân Hy La Mê Sa Xuân Hy La Mung lối sáng như mung lối man bài
La so kem o pe la so kem la so kem mong lỗi tham như mong lỗi đến tin tôi ढंग से नहीं मना पाते हैं। अगर हम इसको अगर एक साथ मिल करके मनाते हैं और वो हम दूसरा थोड़ा सा अगर हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, हम अपना सिर्फ में नहीं मना करके इसमें हम टूरिज्म की ओर हम थोड़ा टूरिज्म प्रोस्पेक्ट को लेकर के हम अगर इसको मनाते हैं तो शायद ये हमारा लिए गेम चेंजर बन सकता है। इससे हम अपना आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। हमारा जो जितना भी युवा अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है वो इसमें जुड़ करके कुछ ना कुछ आमदनी होगा, ये मेरा मानना है। तो हम सब ऐसे एक फेस्टिवल करना है जो कि सब बाहर से भी लोग आए और उन लोग हमारा फेस्टिवल को देखने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो आ करके यहाँ में कम से कम सप्ताह भर हम लोग फेस्टिवल को करना है, ताकि छोटा छोटा फेस्टिवल हम लोग 1, 2, 3 दिन का करता है वो इतना मीनिंगफुल नहीं रहता है। और टूरिस्ट भी ये सोचता है कि हम कौन सा वाला फेस्टिवल में जाओ, कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा वाला ज्यादा सुंदरता है। तो ये नहीं रह करके अगर हम एक साथ कर सकता है, जैसे कि तिरप फेस्टिवल, चांगलांग फेस्टिवल, लोंगडिंग फेस्टिवल, और वो भी एकदम हम लोग सीरीज मिला करके कर सकता है, तो जितना भी टूरिस्ट है वो आ करके यहाँ में 10-15 दिन आ करके हमारा TCL एरिया को विजिट कर सके और हमारा जो रिच कल्चर है उसको एक्सप्लोर कर सके, ये मेरा भी मानना है। मैं लास्ट पिछला 4-5 साल पहले भी यहाँ में आया था और मैं हमेशा जहाँ में भी जाता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ अपना कल्चर सबसे, अरुणाचल में सबसे ज्यादा कल्चर हमारा पास है। हम डाइवर्सिटी है, लेकिन वो हम डिमेरिट को नहीं देखते हुए हम मेरिट को देखना है। जैसे कि हमारे पास 26 सब मेजर ट्राइब है और मोर देन 100 सब ट्राइब है, तो सबका अपना अपना फेस्टिवल है। तो हम सब उसको अलग ढंग से हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो शायद ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसे करके टूरिज्म को थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंस देते हुए एक साथ क्लब अप करके अगर एक सप्ताह जैसा हम लोग मना सकने से बहुत अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट करके रखा कि बुद्धिजीवी, यहाँ का यूथ लीडर्स, CBOs, NGOs, आप लोग चर्चा कीजिए और सिर्फ तिरप में नहीं, हम चांगलांग लोंगडिंग में भी इस तरह का सेम करना है। तो ये शायद हम अपना जगह को डेवलप करने में और अपना जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हम सुविधा देने में सक्षम होंगे, ये मेरा मानना है। बाकी खास करके अच्छा लगा जितना भी यहाँ में प्रस्तुत आप लोगों ने किया। वैसे हम सब हमेशा देखता है तो कुछ नहीं लगता है। We used to give very less importance because we always used to witness such kind of dance and songs. But for others, those who came from outsiders, for them it's very, new version
for them is very new and very attractive one. तो हम इसको हम ज्यादा से ज्यादा हम डिस्प्ले करने के लिए कोशिश करना है। यहाँ में जितना भी भाई भाया अंकल आंटी लोग सुंदर से प्रस्तुत आप लोगों ने दिया, और भी बाकी ट्राइब का भी हम लोग इंक्लूड करना है, बाकी गाना को इंक्लूड करना है। इस तरह का अगर हम लोग इस चीज को हम लोग शोकेस करेंगे तो एक ना एक दिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और हमको आमदनी लेने के लिए हमारा आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत काम आएगा, ये मेरा मानना है। खास करके मेरा युवाओं को यही रिक्वेस्ट है, हम यहाँ में जितना भी देखा सीनियर सिटीजन को देखा जो कि 50-60 इयर्स लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमको भी ये चीज के लिए अलग सा क्लास नहीं है, इसके लिए अलग हम स्कूल में प्राप्त नहीं करेंगे, ये हम लोग यहाँ में पार्टिसिपेट करके हम लोग सीखने वाला है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जितना भी युवा पीढ़ी है, जितना भी यूथ है, आप सब ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना है और अपना सीनियर से यहाँ में सीखना है किस तरह का डांस करते हैं, किस तरह का जो सिंगिंग करता है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो करके अपना कल्चर को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है और हम लोग प्रमोट भी करना है। ये खास करके अपना युवा पीढ़ी को मेरा एक संदेश जाएगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने खास करके डांस जो बहुत इतना हिट में शान हिट में आप लोगों ने कस करके खड़ा हो रहा है या प्रस्तुत कर रहा है। हम लोग अंदर में बैठ करके भी बहुत गर्म लग रहा है, तो मैं ज्यादा अपना वाणी को समाप्त करने के लिए कोशिश करूंगा। वंस अगेन मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने हमको यहाँ ऐसे चीफ गेस्ट के तौर पर अटेंड करने के लिए बुलाया और मैं हमेशा आपका साथ हूं। जब जब भी दरकार पड़ेगा, आप लोग अगर यूनिफिकेशन करके आप लोग अगर एक फेस्टिवल मनाएंगे, तब भी आप लोग अगर डिसाइड करते हैं तो हम लोगों को भी इन्फॉर्म करना, उसमें हम लोग किस तरह से और मॉडिफिकेशन ला सकते हैं या किस तरह से हम लोग और सुधार ला सकते हैं, हम जरूर अपना साथ देंगे, उसमें मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और खास करके अपना गांव में आप लोग रिलीजन जो भी हो, लेकिन अपना अपना गांव में जो अपना परंपरा है, जो अपना फेस्टिवल है, इसको बिल्कुल आप लोग नहीं भूलना है। इसको आप लोग हमेशा मनाना है, इसको आप लोग हमेशा सेलिब्रेट करना है, ताकि हम आने वाला पीढ़ियों को ये चीज को देख करके ट्रांसफर करके रख सके। नहीं तो अपना परंपरा खो जाएगा और ये चीज जो है हम बाहर से मिलने वाला नहीं है। तो ये हम सीनियर्स का ड्यूटी बनता है कि हमारा युवा पीढ़ियों को हम इसको ट्रांसफर करके जाए, और युवा पीढ़ियों का ये ड्यूटी बनता है कि हम इसको सीखे किस तरह से हमारा परंपरा मना के आ रहा है या हम किसको तरह से मनाना है। तो यही एक अच्छा संदेश है। वंस अगेन रोंगहोन का मतलब यही होता है कि रोंग मीन्स हम लोग बहुत बड़ा चीज को बोलता है, मतलब प्रोस्पेरिटी को बोलता है। हॉर्न मीन्स उसका जो सेलिब्रेशन वगैरह जो भी हम लोग प्रार्थना देते हैं, वो जनरली ये मिलेट सीजन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक तरह से बोला जाए तो ये सिंपल लैंग्वेज में होता है कि ये लक्ष्मी पूजा, जो मेनलैंड इंडिया में पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा, ये एक लक्ष्मी पूजा है। तो ये सबसे अच्छा पूजा, सबसे अच्छा मीनिंगफुल जो रोंगहोनी है। बाकी कुंगतम बोलो, चालो बोलो, वो सब थोड़ा सा अन सीजन में करता है, वो जस्ट फॉर मेकिंग हम लोग अपना बीच में हंसी मजाक करने के लिए। लेकिन ये रोंगहोन जो है पूरा भूमि से, ये अपना जो माता भूमि से जुड़ा हुआ है, जो कि हमको फसल जो भी देता है उसको और ज्यादा से ज्यादा देने के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए होता है। तो ये बहुत मीनिंगफुल वाला है। तो मैं यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको छोड़ना नहीं, हमेशा सेलिब्रेशन को जारी रखिए। हम लोग जहाँ जहाँ जरूरत होगा तन मन से हम लोग साथ देंगे और रोंगहोन को हमेशा आगे ले जाना है। तो हमारे रोंगहोन गांव के सभी लोग
का भी धन्यवाद जो दिन रात मेहनत करके इस त्योहार को सफल बनाया। हमारे परफॉर्मर्स का भी धन्यवाद जिन्होंने सभी आदरणीय मेहमान और दर्शकों का भी धन्यवाद जो का हिस्सा बनकर इसे और भी विशेष बनाया। जय रोहन जय तिरा। This month